Hello everyone. Let's start today's class. Before starting today's class, first I would like to tell that in a previous lecture I had covered angle sum property of a triangle, where we had seen its proof that all the angles of a triangle is 180 degree. Also we had seen a practical related to this property. So it was your theorem first. Today we'll try to learn something new, and this is exterior angle, interior angle of a triangle. Also, what is the relationship between exterior angle and interior angle of a triangle? So in theorem 2 आज की जो हमारी होगी वो theorem 2 है. theorem 2 में हम देखेंगे कि exterior angle और interior angle उसमें क्या relationship होते हैं. So after proving this, we'll do a practical. हम एक practical भी करेंगे और फिर उसके बाद में based on this theorem, I'll try to solve a question. एक question भी हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे. So let's start. Now this theorem is related to जो हमारी theorem 2 है ये related है exterior angle of a triangle से. So theorem 2 says that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे सामने हैं. फर्स्ट इज एक्सटीरियर एंड सेकेंड वर्ड इज इंटीरियर. ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, आप ये क्या होते हैं? अब चलिए इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में ये रिलेशनशिप बट हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे. नाउ आई एम टेकिंग हियर a line AB, BC and CA. That means I am drawing here a triangle ABC. एक triangle ABC हमने यहाँ पे draw किया हुआ है. Now this is your angle A. I am taking it X. इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं X. That means ये डिग्री में होगा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ये हमारा होगा एंगल X. Now at vertex B, this is angle Y. At vertex C, this is angle Z. So X, Y, Z are the angles of triangle ABC. Triangle ABC के जो angles हैं वो हैं X, Y and Z. Now what I am doing, I am extending line AB. Line AB को हमने extend किया कहाँ तक का? एक point D तक का. एक point D तक का हमने इसको extend किया. Extend means हमने इसको बढ़ा दिया है line AB को. That means ABD is a straight line. Now see this angle. That means angle DBC या फिर angle CBD. This angle I am taking this angle as a P. ये एंगल हमने लिया है P. So देखिए ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल आउटसाइड ऑफ दी ट्रायंगल ABC के है. That means ट्रायंगल ABC के जो आउटर पार्ट है वहाँ पे ये है. So we can say that this angle P is exterior angle. ये हमारा एंगल P है exterior angle. तो in this way P is a exterior angle of triangle ABC. Now see, अब हमें देखना है कि इसके जस्ट अपोजिट, इस एंगल P के जस्ट अपोजिट ये अंदर कौन सा, इस ट्रायंगल के अंदर कौन से एंगल्स हैं जस्ट अपोजिट. तो अपोजिट हमारे ये X एंड Z, ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल्स हैं. और अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो these two angles, that means angle X and angle Z, these two angles are interior angles of triangle. Since X and Z are opposite to the P, मतलब एक P के दूसरी साइड में है हमारे X और Z एंगल. So we can say that X and Z are the interior opposite angle. Interior opposite angle of triangle ABC. ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये जब भी हम देखेंगे रिस्पेक्टिव में होंगे. दैट मीन्स P के रिस्पेक्ट में इस टाइम पे अभी X और Z है अपोजिट एंगल. ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो अब हमारी थ्योरम ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल, ये जो है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ये अगर हम इक्वल करें तो ये होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के. दैट मीन्स जो P है, P की वैल्यू X और Z को जो हम ऐड करेंगे तो उसके इक्वल होगी. ठीक है, उसके इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है. सो चलिए प्रूफ करते हैं इसे. टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. दैट मीन्स
जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है P, तो P की वैल्यू होगी, इस P की वैल्यू होगी x प्लस जेड के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ये चीज। सो चलिए प्रूफ करते हैं। हमने क्या लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। आई एम टेकिंग all the angles of triangle ABC. Now I am adding x plus y plus z, then we'll get 180 degree. The reason is that x, y and z are the angles of triangle ABC. ठीक है, तो जब भी हम किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं then we get 180 degree. We had learned in our previous lecture also. तो इससे पहले हमारी थ्योरम 1 थी, उसमें भी हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा है बस। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, P एंड Y। सी एवरीवन ऑन लाइन ABD, लाइन ABD पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल P एंड एंगल Y। नाउ आई एम एडिंग एंगल P एंड एंगल Y को हम ऐड कर रहे हैं, P प्लस Y। व्हेन वी ऐड दिस देन वी गेट 180 डिग्री, we get 180 degree. Why? Reason is that we see that P and Y, these two are linear pairs. ये दोनों हमारे एक लीनियर पेयर्स हैं। दैट मीन्स P और Y को जो हम ये मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स ABD ये वाली लाइन फॉर्म होती है। सो वी कैन से दैट P plus Y equal to 180 degree. Now what I am doing, I am subtracting these two equations. जो हमारी दोनों इक्वेशन ये ऑब्टेन हुई है उसमें से जो सेकंड इक्वेशन, उस सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे वाले इक्वेशंस हैं इनके सभी सिंबल्स हमारे चेंज हो जाएंगे, सभी सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो P की वैल्यू थी, P की वैल्यू ये हमारी निगेटिव में है, हो जाएगी, और Y की वैल्यू भी निगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, और जो ये हमारा 180 डिग्री है इसकी भी वैल्यू ये निगेटिव में आ जाएगी। नाउ लेट्स सी, अब देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए x हमारा वैसे आ जाएगा नीचे। देखिए क्या इसमें कैंसिल आउट होने वाला है, ऊपर हमारा ये y प्लस में है और यहाँ नीचे y हमारा निगेटिव में हो गया है। सो y से y कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, हमारे नीचे बचेगा यहाँ पे x बचेगा, p की वैल्यू माइनस में आएगी, z की वैल्यू ये इधर ऊपर वाली प्लस में आएगी। दैट मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया। नाउ सी राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड वी आर सीइंग दैट हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सो 180 एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद विल गेट हियर 0, ऑन द राइट हैंड साइड विल गेट 0। सो नाउ अब इसको थोड़ा एक अरेंज करते हैं। अरेंज करने की मीनिंग ये है कि जो ये P है, अगर हम P को ले जाएं ये राइट हैंड साइड में तो P पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स P इक्वल टू, जो P की वैल्यू आएगी P इक्वल टू x प्लस जेड। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं P इक्वल टू x प्लस जेड। ठीक है ना, दैट मीन्स ये जो P को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि P इक्वल टू x प्लस जेड। फिर उस राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें इससे क्या ऑप्टेन हुआ, हमें यह ऑप्टेन हुआ है कि P is our एक्सटीरियर एंगल। जो हमने बताया था P हमारा क्या है, P एक एक्सटीरियर एंगल है। इसकी वैल्यू आ रही है x प्लस जेड मीन्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। दैट मीन्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल P था, इस P की वैल्यू होती है x प्लस जेड मीन्स जो इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए, हमें प्रूफ करना था P इक्वल टू एक्स प्लस जेड। सो P इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये हमारा आ गया। सो हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमने अपना ये थ्योरम 2 भी प्रूफ कर दिया है। अब चलिए देखते हैं इस थ्योरम को अगर हमें एक प्रैक्टिकल करके बताना है कि प्रैक्टिकल करके कैसे हम प्रूफ करेंगे। सो एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम क्या करेंगे कि एक ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक शीट पे ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उस ट्रायंगल को हम ऐसे, ये जो रेड कलर में ट्रायंगल है उसको हम शीट पे बना करके फिर सीजर लेंगे, सीजर की हेल्प लेकर के ट्रायंगल ABC को अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारी लाइन AB होगी उसके एक स्केल की हेल्प ले करके एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स ABD स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल X, देखिए एंगल X को हम यहाँ से अलग करेंगे और
एंगल Z को यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर जो ये हमारा x वाला पार्ट रहेगा और ये z वाला पार्ट रहेगा, इन दोनों पार्ट को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, यहाँ पे इस P की प्लेस पे अरेंज करेंगे। देखिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ से ऐसे अलग किया था, ठीक है, और ये ऐसे अलग किया था एंगल। ठीक, ऐसे अलग करके फिर हम जो ये वाला एंगल रहेगा और ये वाला एंगल रहेगा, इन दोनों एंगल्स को हम यहाँ पे ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में ये हमारा ए वाला पार्ट है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट ये यहाँ पे ऐसे अरेंज किया गया है, ए वाला एंगल, और ये फिगर में यहाँ बी वाला पार्ट है, तो बी वाला पार्ट यहाँ पे अरेंज किया गया है। ठीक, तो आप ऐसे इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने पे देखिएगा कि यू विल गेट आई स्ट्रेट लाइन, दोनों को पास पास में रख करके हम पेस्ट करेंगे, देन विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी। सो दैट मीन्स मीनिंग ये होगी कि इस पूरे एंगल को हमने ये पी माना था, ठीक है ना, इस वाले को हमने पी माना था। सो दैट मीन्स ये पी वाले को, एंगल पी को ए और बी दोनों कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, ए और बी जो भी इसके इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल ये वाले हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों एंगल पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे। सो मीनिंग यही होगी कि P इक्वल टू जो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन दिस वे वी कैन डू आर प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिकल अपना कर सकते हैं कि जब भी हमें एक्सटीरियर अपोजिट एंगल प्रूफ करना होता है तो वो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दैट मीन्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, हेंस प्रूफ, ये हमने प्रैक्टिकल करके प्रूफ कर दिया। नाउ सी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इन फिगर, देखिए फिगर ये है हमारा। ठीक, इस फिगर में इफ QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, देखिए QT एक लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन PR, तो ये हमारा हो गया P एंड दिस इज R, ये लाइन है PR। इस लाइन PR पे ये QT परपेंडिकुलर है। सो अब परपेंडिकुलर है तो इस पे जो चीज़ें गिवन है वो हम उसको लिखते चलते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स राइट दिस, QT is perpendicular on PR, so that means this angle is 90 degree. ठीक है, this angle is 90 degree. This angle means angle QTR is 90 degree. Now angle, this angle, that means QTP, this angle will also be 90 degree. ये angle भी हमारा 90 degree ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सो राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, आई एम राइटिंग है 90 डिग्री। नाउ एंगल TQR, दिस एंगल इज 40 डिग्री, ये हमारा एंगल है 40 डिग्री। एंड एंगल SPR, नाउ सी एंगल SPR, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री। फाइंड x एंड y, अब हमें x एंड y को फाइंड करना, दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। सो चलिए इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं x एंड y की। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ सी एवरीवन, सी इन ट्रायंगल PRS में हम देखेंगे तो देखिए हमें कौन कौन से हैं जो चीज़ें पता है। इसमें हमें 30 डिग्री पता है, ये वाला एंगल पता है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। सो अगर हम लिखने की कोशिश करें एक्सटीरियर एंगल तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी y इक्वल टू x प्लस 30, y इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री। ठीक, देखिए इसमें क्या है, जो अभी हमने जस्ट थ्योरम पढ़ी वही थ्योरम है। इसमें हमने क्या बताया कि आपको PRS इस ट्रायंगल में देखना है। तो ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। हम इसको रेड कलर से आपके लिए कर दे रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है। तो इस ट्रायंगल में देखिए जो y है, y हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू होगी 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू 30 प्लस x, तो यही हमने लिखा है x प्लस 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1।
नाउ सी सेकंड हम देखते हैं अपना इसमें ट्रायंगल QRT, ट्रायंगल QRT। तो अब इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं आपके लिए, एक कलरफुल बना दे रहे हैं एंगल QRT, एंगल QRT। तो देखिए QRT, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, QRT इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। नाउ सी, एक एंगल हमारे पास है 40 डिग्री और ये वाला है 90 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल जो कि X है, ये हमें फाइंड करना है। तो नाउ we'll use here theorem 1. Theorem 1 means the sum of all the angle in a triangle is 180 degree. So we can write here 40 degree plus 90 degree, ठीक है। 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो फिर देखिए कितनी वैल्यू आती है, 40 प्लस 90 प्लस x, 40 प्लस 90 प्लस x। तो ये हमारे दीज आर दी ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो दैट मीन्स इसको हम सम करेंगे तो विल गेट 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो 40 प्लस 90 इसकी वैल्यू आएगी 40 प्लस 90, इसकी वैल्यू आएगी 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री प्लस x, 130 प्लस x, इसको हम क्या करें, ऐड कर दे रहे हैं, 180 डिग्री आएगा। नाउ वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ पे फाइंड करना, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री विल गेट हियर 50 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू हमें मिल गई है 50 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, ये वाले इक्वेशन में, ठीक। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमें y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो चलिए y की वैल्यू रखते हैं, y वाले इसमें हमने रखा था y इक्वल टू x मीन्स 50 डिग्री, y इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। नाउ 50 प्लस 30 मीन्स 80 डिग्री, 50 प्लस 30 मीन्स 80 डिग्री, ठीक है। 50 प्लस 30 मीन्स 80 डिग्री। सो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है 50 डिग्री एंड y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे x और y की वैल्यूज आ गई हैं। सो हमें यही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एट लास्ट विल राइट हियर आंसर। तो हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया था, हमने इसमें यूज़ किया था, शुरू में यूज़ किया कि जो थ्योरम पढ़ी हुई थी कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू हमने लिखा था x प्लस 30, ये लिख लिया था x प्लस 30, ठीक। फिर हमने देखा कि हमें यहाँ पर अभी x की वैल्यू नहीं पता है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो फिर हमने क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल ये QRT लिया। तो उसमें हमने देखा कि हमें दो एंगल्स पता हैं, उस ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है, एक थर्ड एंगल नहीं पता था। तो थर्ड एंगल पता करने के लिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था उस फर्स्ट थ्योरम को हमने ऐड कर लिया था, है ना। उस फर्स्ट थ्योरम को हमने ये देख करके जो सभी एंगल्स हैं उनको ऐड कर लिया, तो 40 प्लस 90 प्लस x किया 180 आ गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू ऑब्टेन होगी 50 डिग्री। अब x की वैल्यू मिल जाएगी, तो आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ x आई एम डूइंग, हमने x की वैल्यू को जो ऊपर वाली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 30, इसमें x की वैल्यू पुट कर दिया है। तो जब हमने पुट कर दिया x की वैल्यू तो हमें मिल गई y की वैल्यू 50 प्लस 30 80 डिग्री। So in this way we had solved this question. So we see here that I am using here both the theorem. हमने यहाँ पे दोनों थ्योरम यूज किया है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 दोनों यूज किया है। इसी तरीके से आप लोग भी जो देखिएगा क्वेश्चन उसमें कौन कौन से हैं जो यूज हो रहे हैं थ्योरम, सभी थ्योरम्स और पिछला सभी पढ़ते हुए हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है। So hope you had enjoyed it, and if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solutions of all your queries. So all the best and have a nice day.